हमारा जो अगला सेशन होने वाला है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पैनल डिस्कशन का टॉपिक है इंदौर's नेक्स्ट चैप्टर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग कॉरिडोर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट। मैं एक और बार आप लोगों के लिए टॉपिक रिपीट करना चाहूंगा। ये है इंदौर's नेक्स्ट चैप्टर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग कॉरिडोर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट। Ladies and gentlemen, ये सेशन को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अ वेरी डायनामिक रियल एस्टेट प्रोफेशनल जिनके पास 19 साल का तजुर्बा है एंड अ प्रूवन एक्सपर्टीज इन ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ, managing multi-regional teams and delivering strategic advisory across valuation and transactions. Ladies and gentlemen, the esteemed Deputy Head Business Development Consulting and Valuation CBRE, पंकज टेकचंदानी जी के लिए बजाइए जोर से ताली प्लीज। थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बैठ जाइए अपने स्थान पे यहाँ पे। थैंक यू एंड जस्ट अ बिट ऑफ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय गेस्ट्स ओवर हियर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज काइंडली बैठ जाइए, हमारा अगला सेशन चालू हो रहा है। I'll request everybody to please kindly take their seats. Sir, if you all can please take your seats, that would be nice. We're beginning the next session. So just to ensure that we are being absolutely respectful to our next set of guests, आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बैठ जाइए। ये सेशन के हमारे पहले स्पीकर है द फाउंडर ऑफ एवीसी ब्रांड एडवाइजरी एंड एन एब्सोल्यूट वेटरन एडवाइजरी, creative leader with a pedigree of defining major brands like Videocon and Manyavar, but of course real estate उनके जिंदगी का पहला प्यार रहा है। I'm not sure if his beloved wife will be happy to hear that or not, but my dear friend, ladies and gentlemen, the founder and creative director of ABC Brand Advisory, Amit Baid जी के लिए बजाइए जोर से ताली please everybody over here in this room. Can I have a bigger round of applause for Mr. Baid please everyone? Thank you. हमारे अगले जो स्पीकर है, he is a seasoned real estate professional with a deep-rooted knowledge about the city's property landscape and market dynamics, and with over 2 decades of experience, he has built a strong reputation in project marketing, specializing in residential development. Ladies and gentlemen, the esteemed president of Indore Realtors Welfare Association, Devesh Pahwa जी के लिए बजाइए जोर से ताली please. Mr. Pahwa, can we have you over here on stage? बहुत-बहुत शुक्रिया सर, स्वागत है आपका, thank you. हमारे अगले स्पीकर, ladies and gentlemen, is a distinguished real estate professional, entrepreneur and past Rotary Governor, leads TRS Property Mall as well, which is a flagship venture of Total Realty Solutions India Private Limited. He brings extensive experience in real estate advisory, investment consulting and property marketing with a very, very strong focus on delivering innovative and customer-centric solutions. Ladies and gentlemen, Managing Director of TRS Property Mall, Dr. Gajendra Narang जी के लिए बजाइए जोर से ताली प्लीज। डॉक्टर नारंग इज ओवर हियर, स्वागत करते हैं आप सब लोग उनका, थैंक यू। हमारे जो अगले स्पीकर है, he represents the third generation of the Iron family, which has shaped Indore's real estate landscape for over 4 long decades with a vision to redefine luxury living. He is spearheading the development of high-end residential communities that combine thoughtful planning, contemporary architecture, and elevated lifestyle experiences. Ladies and gentlemen, the esteemed founder of Iron Lux and director Iron Group, Keshav Iron जी के लिए बजाइए जोर से ताली please। बहुत-बहुत शुक्रिया केशव जी, thank you for joining us. Thank you. And my next speaker, ladies and gentlemen, has over 2 decades of experience in delivering quality developments all across Indore. Since its inception, Dream Group has successfully completed over 20 projects and is currently executing 9 RERA registered developments on the rapidly growing Indore, Ujjain Road and Super corridors. Ladies and gentlemen, the co-founder and managing director, Dream Group, Vijay Singhal ji. Thank you so much, Mr. Singhal, for joining us over here. What a pleasure to have you. Dream Group truly completing all their dreams and making people dream as well. So बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबको. Thank you so much. एक बार एक consolidated जोर से ताली हो जाए for all the panelists, please. Thank you so much. Stage is set. Timer आपके लिए वहाँ पे है sir. We look forward to hearing all of you. शुक्रिया. Hello. Thank you very much. And welcome to the panelists and good evening everyone. So आज से तीन पैनल आज के हो चुके हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डिस्कस ना करी गई हो अभी तक।
वही हम डिस्कस कर रहे थे, अंदर की रह क्या गया है डिस्कस करने को अब। बट नेवरदलेस हमारा जो आज का टॉपिक है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस इंदौर को कितना ग्रो करा सकता है और कहाँ तक पहुँचा सकता है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। 1998 में अगर आप देखें, हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर हाईटेक सिटी के नाम पे आया वहाँ पे, उसके बाद रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आया, और उसके बाद एक हेरिटेज टाउन से उसने तब्दीली ली इनटू आईटी हब। आज की डेट में 80 प्लस फॉर्च्यून 500 कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसेज जीसीसीज हैदराबाद में हैं। सो हैदराबाद जैसी एक सिटी से अगर हम इंस्पिरेशन लें और देखें कि 25 साल या 30 साल की जर्नी में एक सिटी कैसे इवॉल्व कर सकती है, ये सिमिलर लर्निंग्स हम इंदौर पे कैसे ला सकते हैं, उसके लिए वी वांट टू सी क्या क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट साइड से, डेवलपर साइड से, एंड फ्रॉम एवरी इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं सब क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वहाँ पहुँच पाएँ। तो मैं पहला क्वेश्चन अमित जी से करना चाहूँगा। सर, आज की डेट में आप इतने ब्रांड्स बनाते हैं बड़े बड़े, एंड एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि एक डेवलपर के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए ब्रांड, लोकेशन, एग्जीक्यूशन सबका कितना महत्व है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और आज की डेट में ब्रांड बनाना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोमिसेस देना रह गया है या उससे ज़्यादा है कुछ? हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, अगर हम लोग इंदौर की बात करें, अगर एक गुड इंदौर की बात करते हैं तो वो आप अच्छा काम करके एक अच्छा इंदौर और अच्छा परसेप्शन बन सकता है। बट ग्रेट इंदौर की अगर बात करें तो सिर्फ अच्छा काम करने से नहीं होगा, आपको एक ग्रेट ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगर वो इंदौर की बात करें, इंदौर का एज अ ब्रांड इंदौर बात करें, तो यहाँ के लोग ही अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, कैसे अपने आप को देखते हैं, या बाकी इंडिया इंदौर को कैसे देखता है, अच्छा काम एक तरफ और अच्छी कम्युनिकेशन एक तरफ, ये दोनों कॉम्बिनेशन से ही हो पाएगा। सो गुड वर्क एंड गुड स्टोरी टेलिंग दोनों की ज़रूरत है। एंड अगर आप एक बिल्डर हैं और आप एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग कहानी की भी ज़रूरत है, और इंटरेस्टिंग कहानी बताने के लिए इंटरेस्टिंग काम करना भी ज़रूरी है। तो कॉम्बिनेशन में ही ये वर्क करता है। अगर सिर्फ अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, उससे तो नहीं बात बनेगी। देयर हैज़ टू बी अ स्टोरी कि ये अगर हमने ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो ये लाइफ कैसे चेंज करेगी, किन इमोशंस को साकार करेगी, वो कहानी तो बतानी पड़ेगी, और वही ब्रांडिंग है। तो मैं यही सवाल विजय सिंह से भी पूछूंगा और केशव से भी, बिकॉज बिल्डर वो है, एंड में हम तो सब बोल के निकल जाएंगे, बनाना इन दोनों ने। सो आपके जो कस्टमर सेट है आज की डेट में, एंड तो उनके परसेप्शन, वो क्या चाह रहे हैं और किस चैनल से आपके थ्रू आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं, ब्रोकर चैनल से आ रहे हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ से आपका कस्टमर आ रहा है आज? हेलो, गुड इवनिंग। जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये आज के जो मार्केट स्लो डाउन है उसके लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है कि कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं। सो इन माय ड्रीम ग्रुप आई एम वेरी प्राउड कि मुझे अभी पर डे 5 to 10 बुकिंग्स हो रही है और मुझे कहीं भी स्लो डाउन फील नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है मैंने मल्टीपल चैनल स्टार्ट की हुई है। हमारी इन हाउस चैनल है अबाउट 100 एम्प्लॉयज़ की जो मार्केटिंग कर रही है डोर टू डोर। हमने डिजिटल प्रेजेंस अच्छी बना रखी है। हमने जो पोर्टल्स है 99 मैजिक हाउसिंग, उन पे भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और जो मार्केट के चैनल पार्टनर्स है उनके साथ भी एसोसिएशन किया हुआ है। तो जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं ये कोई एक पर्टिकुलर चैनल से नहीं आ रहे, इट इज़ अ 360 डिग्री वर्किंग। तो यदि आप 360 डिग्री वर्किंग करेंगे तो हो सकता है कोई चैनल स्लो हो गई, उस समय दूसरी चैनल फास्ट हो गई। तो अलग अलग चैनल जब रहती है तो आप देखते हैं कि जैसे एक नदी के अंदर अलग अलग नदियाँ मिलकर समुद्र बनाती है, तो वैसी हमने अलग अलग नदियाँ बना रखी है। तो अच्छी फ्लो है, अच्छा मार्केट है, एंड यूज़र मार्केट है, इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिस्टिक रहते हैं। तो जब तेज़ी आती है, जब आपके साथ है, जब मद्दी आती है तो साथ में नहीं है।
लेकिन एंड यूजर्स आर रियल बायर्स, रियल इस्टेट जो है वो एंड यूजर्स है। और अब केशव का भी इनपुट लेंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, एकदम एप्ट इन दिस मार्केट कंडीशन फॉर श्योर। हेलो। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मेन दो ही है, एक एंड यूज़र है और एक थ्रू चैनल पार्टनर होता है। बट वाई एट एरियन ग्रुप वी डू ब्रांडिंग इज, अगर कोई कस्टमर चैनल पार्टनर के थ्रू भी आ रहा है तो शायद उसने अपने चैनल पार्टनर को बोला होगा कि यार मुझे इसका नाम बार बार पढ़ने में आ रहा है, ये पेपर में आ रहा है, ये मेरे इंस्टा पे आ रहा है, ये मेरे फेसबुक फीड पे आ रहा है, ये है क्या यार, उसकी जिज्ञासा क्रिएट करना होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल ब्रांडिंग। कि किसी को हमारे बारे में नहीं पता कि यार हमने ये ताजमहल यहाँ बनाया है, तो उसको हम बता रहे हैं घर बैठे बैठे कि यार ये देख हमने ताजमहल बनाया है। एंड वो आप कोई भी सोर्स के थ्रू आए, डजेंट मैटर टू अस, वो डायरेक्टली हमारे पास आए, वो कोई चैनल पार्टनर के थ्रू हमारे पास आए, इनडायरेक्टली वी थिंक वो हमारी ब्रांडिंग की वजह से हमारे पास आ रहा है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि हमने मार्केट में कुछ दिया है, कुछ बनाया है। सो आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ब्रांडिंग, डजेंट मैटर वो एंड यूज़र रिलेटेड हो या चैनल पार्टनर रिलेटेड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आपके लिए जहाँ पे आप तो लग्जरी स्पेस में ऑपरेट करते हैं, एंड एक क्वेश्चन इसी से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि लग्जरी का मतलब मोस्टली आजकल हम देखते हैं कि घर का साइज़ बड़ा कर दिया, एक क्लब हाउस बड़ा कर दिया, वो लग्जरी हो गई। तो आप लग्जरी को किस मायने में देखते हैं, और एक्चुअल में क्या वो चीज़ें हैं जो आप अपने अपार्टमेंट या अपने कॉम्प्लेक्स में दे रहे हैं जो एंड यूज़र के लिए जेन्युइन लग्जरी है? See, when I think about luxury, it's about lifestyle. आज जैसे आपने कहा कि हर जना बड़ा स्पेस दे सकता है, मैं इंदौर से 20 किलोमीटर जाके आपको 5,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे दूँ, दैट इज़ नॉट लग्जरी। इट मीन्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ वॉट अ परफेक्ट लाइफ स्टाइल कुड बी, क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस फॉर योर कस्टमर्स, उनके लिए रिजुविनेशन की स्पेस हो। शायद आजकल क्लब हर प्रोजेक्ट में होता है, क्लब होता है, स्विमिंग पूल होता है, कस्टमर ये नहीं पूछता, कस्टमर पूछता है वो है क्या। So maybe enhancing everything, going into the detail of each and everything, कि आज मेरा कस्टमर सुबह उठा तो सुबह उठने से लेकर वो शाम को ऑफिस से थका आ रहा आएगा, उसके लिए मैं क्या क्या दे सकता हूँ, किस ब्रांड से टाई अप करके, चाहे मैं कोई ब्रांडेड स्पा लिया हो, मैं ब्रांडेड रेसिडेंसेस लिया हो, कोई गुड हॉस्पिटैलिटी लिया हो, आपका घर साफ करने वाला अच्छी मैनेजमेंट कंपनी लिया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लग्जरी हम गिनते हैं। इट्स नॉट जस्ट स्पेस, इट्स नॉट जस्ट लोकेशन, इट्स अबाउट गिविंग देम एट द एक्चुअल फील ऑफ अ लाइफस्टाइल कि यार ऐसी ज़िंदगी मुझे जीनी है और हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट में वो मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी बात पे गजेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं जो आज इंदौर में हैं, उसमें अगर कैटेगराइज किया जाए लग्जरी इन्वेस्टर, मिड मार्केट इन्वेस्टर, लो एंड अफोर्डेबल इन्वेस्टर या एंड यूजर्स, कहाँ पे शिफ्ट आप देख रहे हैं इस पूरे मार्केट में? देखिए इसमें क्या होता है सर कि टोटल ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है, वेदर वी टॉक अबाउट इंदौर, वी टॉक अबाउट इंडिया, तो उसमें ही एक बहुत बड़ा हमारा सेगमेंट जो है वो मिड सेगमेंट और लोअर सेगमेंट है। सो दैट इज़ ऑलवेज ऑन विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो वो तो अपनी जगह पे हमेशा ही निरंतर बढ़ता है और उसके अंदर तो काम बिल्डर को करना ही होता है। बट देन ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट ओवरऑल इकोसिस्टम, तो जब से कोविड के बाद रेसिडेंशियल की तरफ एक व्यक्ति का इंटेंशन चेंज हुआ है दैट नाउ आई शुड हैव अ गुड लाइफ वेयर आई एम लिविंग, इट शुड बी वेरी नाइस बिकॉज ही हैड स्पेंट अ वेरी बिग टाइम एट हिज हाउस। तो वो जो लग्जरी, जैसा कि केशव ने बोला, वो कन्वीनियंस एंड एक रिलैक्सेशन मोड वाला जो सिस्टम है, दैट इज़ नाउ कमिंग अप इन द टाउनशिप्स। एंड बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर है अब आगे वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स का होने वाला है, जहाँ पे कि सभी सुविधाएं अंदर ही होंगी। मे बी देयर रिक्रिएशंस, मे बी देयर ऑफिस स्पेसेस, मे बी देयर वर्क स्पेसेस एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, एवरीथिंग विद इन अ रीच। So that would be the future, I think, of integrated townships, and वो वाला जो पार्ट है वो मुझे स्लोली बढ़ता हुआ दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ दिवेश जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जैसे आप पूरे चैनल पार्टनर्स सबको रिप्रेजेंट करते हैं और आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कितने ट्रांसपेरेंटली चैनल पार्टनर्स प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं उसके बारे में, और कैसे एंड में ट्रांसलेशन हो रहा है पूरे सिस्टम का फ्रॉम अ लीड टू अ सेल।
सो उस इकोसिस्टम में आप क्या देख रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है चैनल पार्टनर्स की फ्रॉम डेवलपर्स एंड डेवलपर्स फ्रॉम चैनल पार्टनर्स? राइट, थैंक यू पंकज जी। एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी हमेशा से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है, एंड विद गॉड्स ग्रेस कहें या एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, वी हैव इम्प्लीमेंटेड रेरा एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड रेरा सक्सेसफुली, एंड फॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ, इन इफ नॉट द फर्स्ट, इट इज़ अमंग द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स जिसने रेरा को इम्प्लीमेंट करा प्रॉपरली। और सारे कॉलोनाइजर्स ने भी, एमपी के इंदौर ने, और इनफैक्ट सारे रियल्टर्स ब्रोकर्स ने भी इस चीज़ को बड़े हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करा। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्वेश्चंस थे, डर था, क्योंकि जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती तो डर होता है, एंड दैट इज़ व्हाट द ट्रांसपेरेंसी इज। व्हेन यू नो द थिंग्स तो फिर डर खत्म हो जाता है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तो रेरा ने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज देयर, बिल्डर्स को कोई चीज़ खरीदनी है तो यू कैन सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, क्योंकि फर्स्ट चीज़ वहीं से स्टार्ट होती है। अगर बिल्डर के पास डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, लैंड क्लियर है, उन्हें मालूम है कि मेरे पास हिस्ट्री प्रॉपर है, तो ऑफकोर्स उसकी डिलीवरी ईजी होगी। कई बार होता है कि प्रोजेक्ट हम सेल पे लाने की कोशिश करते हैं और पीछे डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते हैं। हमारे पास टीएनसी का प्लानिंग आता है, उसके बाद डेवलपमेंट परमिशन आती है, रेरा आता है, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है सारी कॉलोनीज़ के लिए। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी विच गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग। दो यहाँ पे कुछ फ्लॉज हैं ऑफकोर्स, पर वो सारे सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जैसा कि हम सब जानते हैं, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑन रिकॉर्ड्स, आई मीन आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, बट एज पर एक्चुअल सिनेरियो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि रियल एस्टेट फ्रैटर्निटी नॉट ओनली बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स, ब्रोकर्स को इन्वॉल्व करती है, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, एंड देयर आर सो मेनी पीपल। So everybody is involved in that system, and in that ecosystem 100% transparency is not so easy, because we are working on such huge revenues. So ये तो बात हुई कि बिल्डर को जो लीगल टाइटल चाहिए उसकी ट्रांसपेरेंसी। अब सेकंड जो हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न होता है एज अ ब्रोकर, एज अ रियल्टर, जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो नॉर्मली इंदौर इज स्टिल डोमिनेटेड एज अ प्लॉटिंग प्रोजेक्ट। प्लॉट्स की यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड रहती है, दो बहुत जल्दी अब हम लोग वर्टिकल्स में भी ग्रो कर रहे हैं, बट दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। पर प्लॉट्स में बहुत ईजी चीज़ें होती हैं देखा जाए तो, द डेवलपर हैज़ एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट, देयर इज़ नथिंग टू हाइड। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि सारी चीज़ें वही की वही कम्युनिकेट करें। और नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी का जो फ़र्क आता है कि ब्रोकर कई बार कुछ चीज़ें ओवर पिच कर देता है सेल में, क्योंकि सेल्स में आप चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए, तो दैट इज़ वेयर वी हैव टू चेक। और हम आज यहाँ पर बिल्डर के बिहाफ पे कोई चीज़ पिच कर रहे हैं, तो बिल्डर वो चीज़ कर रहा है, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड, दैट इज़ इन दी प्रेजेंटेशंस वाइल वी आर गोइंग फॉर दी परमिशंस, दैट इज़ ऑन रेरा, दैट इज़ रिकॉर्डेड। तो ओवर पिचिंग अगर करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी ऑफकोर्स एक क्वेश्चन होती है। अदरवाइज सीइंग द लास्ट 5 to 7 years मोस्ट ऑफ द इंदौर डेवलपर्स हैव डिलीवर्ड व्हाट दे हैव सेड। टाइमलाइन थोड़ी मिसमैच होती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशंस, देयर आर रीजंस। तो ट्रांसपेरेंसी हम बात जो कर रहे हैं वो काफ़ी कुछ रिजॉल्व है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्वाइट सेटिस्फाइड, क्योंकि चीज़ें सामने हैं। और एवरी बिल्डर डेवलपर अब तो बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में एवरी मंथली, एवरी क्वार्टरली दे आर सेंडिंग द वीडियोज एंड फोटोग्राफ्स फॉर दी टू द कस्टमर कि आप देख सकते हैं हमारी क्या ग्रोथ है। तो दैट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी हैव रीच्ड फॉर द डेवलपमेंट। फॉर द पेमेंट सिस्टम रेरा का बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है, इतना डेवलपमेंट होगा आप इतना पेमेंट देंगे, तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड्स, थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथ। और इंदौर एक अच्छा ईजी मार्केट है वेयर ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर बिटवीन अ ब्रोकर, अ क्लाइंट एंड डेवलपर। सर पहली बार ही मैंने सुना है इजी मार्केट। तो आपका जो पहला पॉइंट था इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कैसे थोड़े लीकेजेस हो जाते हैं बिकॉज इतने लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी है। सो अमित जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एआई की बदौलत क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये मिसेस ना हो और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंटली एक सिस्टम में हो, ताकि सारी ट्रांसपेरेंसी बिटवीन डेवलपर एंड बिटवीन एंड यूज़र हमेशा रहे। देखिए, मैं टेक एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मैं एआई एक्सपर्ट हूँ, बट बेस्ड ऑन वॉट एवर लिटल आई नो एंड सम कॉमन सेंस, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से एआई सारे लीकेजेस को कोई भी प्रोसेस में एड्रेस करता है। मेरे हिसाब से ये प्रोसेस भी कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आपको जो इनकम टैक्स नोटिसेस भी आ रही हैं वो भी एआई भेज रहा है।
तो यहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में अगर एआई एड्रेस कर सकता है तो यहाँ पे डेफिनेटली एड्रेस कर सकता है। सो दिस इज माय 2 पैसा ऑफ कॉमन सेंस का व्यू। बाकी कोई एक्सपर्ट बता सकता है, मेरे हिसाब से तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। नहीं, गजेंद्र जी के पास। पंकज जी, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमने अभी एक नया कंसेप्ट जनरेट किया रियल एस्टेट में। एक ऐसी जगह, जैसे आप कोई भी परचेसिंग करना चाहते हैं, आप ज्वेलरी की परचेसिंग करें, कार की परचेसिंग करें, पर वो आप जाते हैं किसी शोरूम में और परचेस करते हैं। परंतु रियल एस्टेट के लिए कोई ऐसा शोरूम, कोई ऐसा मॉल नहीं था। सो हमने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसके कारण हम इसको फिजिकली डाल सके, जिसको हमने अभी पायलट इंदौर में डाला है। एंड वी हैव इंटीग्रेटेड ऑल काइंड ऑफ एआईज, ऑल काइंड ऑफ सिस्टम्स हमारे पोर्टल्स हैं, और उसमें विशेष करके जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो छुपा हुआ है। हमने उसमें कुछ लॉन्च क्रिएट किए हैं फॉर द ब्रोकर्स एंड फॉर द बिल्डर्स एंड ऑल। उसमें CRM सिस्टम्स अडॉप्ट किए हैं। सो एज सुन एज एनी क्लाइंट इज़ कमिंग टू अस एंड ही इज़ गोइंग टू द बिल्डर, सपोज विजय जी के पास कोई साइट विजिट है हमारी क्लाइंट की, तो इनको ऑटोमेटिक पहले उस क्लाइंट की डिटेल्स जाएंगी ऑन द CRM, और इनके यहाँ पे भी एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो ही विल सी दैट वेदर दिस क्लाइंट इज़ देयर प्रीवियसली और नॉट। अगर नहीं है और ये हमको ओके देते हैं तो 60 डेज़ का या 90 डेज़ का उसके अंदर हम टैग इन करते हैं, और फिर उसके अंदर इनके सोर्स पे और हमारी पैनल पे वो कस्टमर रजिस्टर हो जाता है। सो उसके कारण से ना इनकी टीम को प्रॉब्लम आएगी, ना चैनल पार्टनर की टीम को प्रॉब्लम आएगी, और इस टाइप के जो भी कन्फ्यूजन्स है वो उससे दूर होते हैं। तो AI का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पूरे सिस्टम को ऑटोमाइज करके, स्पीड से काम करके ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत काम आ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, मेरे ख्याल से पैन इंडिया जाना चाहिए। आपका पायलट सक्सेसफुल हो, यही हम आशा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा था विजय जी से और केशव जी से पूछना कि आज की डेट में अगर आपके पास 100 करोड़ हैं तो किस कॉरिडोर में, किस सेक्टर में इन इंदौर आप लगाना चाहेंगे? बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्यूचर लुकिंग। देखिए, अभी प्रेजेंट में इंदौर उज्जैन कॉरिडोर और सुपर कॉरिडोर ये तो अभी इमर्जिंग ही लास्ट 10 to 15 ईयर्स से चल रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है ये अनदर ग्रोथ इंजन होने वाले हैं। और यदि लैंड एक्विजिशन के लिए, अगर बड़ी लैंड पॉकेट के लिए जाना है, तो अभी वेस्टर्न रिंग रोड आ रहा है, ईस्टर्न रिंग रोड आ रहा है, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे आ रहा है, उसके अलावा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है जो पीथमपुर कनेक्ट कर रहा है, दैट इज़ गुड। देन इंदौर नागपुर हाईवे, दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगर 100 CR की आप बात करें तो ये 4-5 कॉरिडोर्स अच्छे हैं जो कि अनदर 10 ईयर्स डाउन द लाइन के लिए अच्छे हैं। विद इन 3 to 5 ईयर्स के लिए अगर विजन है तो उज्जैन रोड एंड सुपर कॉरिडोर, दिस आर मोस्ट प्रॉमिसिंग। तो विजन पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के हॉराइजन पे आप लेके जा रहे हैं। बट सुपर कॉरिडोर आपको थोड़ा ओवर सप्लाइड अभी लगता है, नहीं लगता है? एंड किस, मतलब कमर्शियल साइड पे, रेजिडेंशियल साइड पे, कहाँ पे उसकी वायबिलिटी लगती है आपको? मुझे लग रहा है सुपर कॉरिडोर बहुत अंडर वैल्यूड है अभी, और कई लोग इंदौर के जो चैनल पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो तो इस सुपर कॉरिडोर के नाम से डर जाते हैं कि यहाँ काम नहीं करना। मुझे लगता है ओवर सप्लाई इज़ द राइट वर्ड। इंदौर उज्जैन रोड के लिए भी है और सुपर कॉरिडोर के लिए और पूरे इंदौर के लिए है, ऐसा कहीं भी नहीं है पूरे इंदौर में ओवर सप्लाई। डिपेंड ये करता है, जैसे अभी इंदौर में आप तो नए में, मैं इंदौर वालों को बात करूँगा, सराफा में आप जाते हैं, 100 सराफे में 100 दुकानें हैं ज्वेलर की। कपड़ा मार्केट जाते हैं 100 दुकानें, सियागंज जाते हैं 100 दुकानें एक जैसी। लेकिन जो टॉप 5 टॉप 10 है वहाँ तो काम चल रहा है। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम टॉप 10 में रहें। जो भीड़ है वो तो आती जाती रहती है, पर हमारी ब्रांड, हमारी डिलीवरी इतनी अच्छी होना चाहिए, कितना भी ओवर सप्लाई हो, यदि हम टॉप 10 में हैं, हमेशा कस्टमर बने हुए हैं। सुपर कॉरिडोर पे भी आप देखिए, रेसिडेंशियल में बहुत डिमांड है, कमर्शियल में बहुत डिमांड है, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं। और टू विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय आर्किटेक्ट फ्रेंड्स, आर्किटेक्चर में भी मुझे लग रहा है अभी बहुत ग्रोथ होना बाकी है। नाउ इंदौर के जो बिल्डर्स हैं वो बॉम्बे, पूना, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ के अभी आर्किटेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो क्यों लेके आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो वाली कमी है। और सुपर कॉरिडोर पे भी बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है मुझे ग्रोथ का, वर्टिकल ग्रोथ का, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में मुझे इंदौर उज्जैन रोड अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल फेयर इनफ। केशव, आपके एस्पेक्ट पे आप बताइए, क्या आपको लगता है?
आई थिंक मेरे लिए हमेशा से जब से मैंने काम चालू करा है एंड जब से फादर को ज्वाइन करा है, जो भी करता हूँ, मेरे को ईस्ट ऑफ इंदौर हमेशा एक्साइट करता था. दैट इज़ योर बाईपास रोड. एज मैं हमेशा लग्जरी के पीछे थोड़ा टिल्टेड हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इंदौर का जो ईस्ट साइड है वो लग्जरी के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है. वाइबिलिटी वाइज, लोकेशन वाइज, आसपास की जो एम्यूनिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो आज ऑलरेडी वहाँ का जेंट्री ऑलरेडी आ गई है, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, वो उससे बहुत सपोर्ट करता है कि वो ईस्ट ऑफ इंदौर इज़ योर लग्जरी मार्केट. सो इफ़ आई एम पुटिंग इफ़ यू से कि एक ही बास्केट में सारे एग्स, तो आई विल पुट इट इन ईस्ट ऑफ इंदौर. बिकॉज आई थिंक जैसे अंकल ने सुपर कॉरिडोर बोला या उज्जैन रोड बोला, डेफिनेटली देयर इज ओवर सप्लाई. वो 2-3 साल में कवर हो जाती है, फिर एक सप्लाई वापस डिमांड आती है. बट आई फील आज जो ईस्ट ऑफ इंदौर है वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड इंदौर से को रिलेटेड है. आज मैं सुपर कॉरिडोर जाता हूँ तो मेरे को कमर्शियल स्पेसेस में एट द एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू आईटी और बिग कंपनीज कमिंग आउट. यू नो इट वेरी वेल. इट्स अबाउट बिग कंपनीज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम इंदौर. सो वहाँ पे इशू ये लग रहा है मुझे कि आज इंदौर में, एमपी में Tier 3 इन्फ्लक्शन है. माइग्रेशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पीपल आर कमिंग फ्रॉम Tier 3 cities टू अ Tier 2 cities. जब ये माइग्रेशन फ्रॉम अ Tier 2 in another state, maybe from a Maharashtra city or a North Indian state, वहाँ से लोग जब आना चालू करेंगे, जो उसके बाद ही इतनी सारी आईटी कंपनी सस्टेन कर सकती है. आज जैसे हम पुणे मॉडल को देखते हैं, तो पुणे में सिर्फ महाराष्ट्र के लोग नहीं, एमपी से लोग जाते हैं, शायद दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ से भी लोग जाके शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पुणे का मॉडल उनने एज ए सिटी इतना कंपैटिबल बना दिया कि पीपल आर, यंगस्टर्स आर विलिंग टू गो कि हाँ यार, पुणे इज अ सिटी आई कैन सी माई सेल्फ लिविंग इन फॉर द नेक्स्ट 30 years 40 years. तो एज बिल्डर्स, एज जो भी रियल एस्टेट में यहाँ पे काम करता है, हमारा काम यही है कि इंदौर को ऐसा हैबिटेबल बनाए, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, कि बाहर का माइग्रेशन जितना ज़्यादा होगा उससे ही ये सिटी ग्रो हो पाएगी. आई थिंक सो बिल्कुल देवेश जी, आप इस I पे just कुछ- like to add, considering both of the reputed developers, and I think जो लोग यहाँ पर भी बैठे हैं वो भी शायद इस चीज़ को अग्री करेंगे, जो मैं हमेशा मेरी सेल पिच में भी कहता हूँ कि बाईपास इज़ फॉर क्लास एंड उज्जैन रोड इज़ फॉर मास. एंड दैट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टिकट साइज. बहुत ही बढ़िया तर्क था. That class is because of the plot sizes, because of the easy connectivity from city. क्योंकि जब बाईपास बना था, इट्स ऑलमोस्ट, आई थिंक सुनील भी और बहुत पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पे, बड़े सारे कॉलोनाइजर्स हैं, तो अब मोर देन 25 years आई गेस जब वो स्टार्ट हुआ था. एट दैट टाइम हमने कुछ वहाँ प्लॉट्स बेचे थे बाईपास पे, तो हमें बड़े लोग, मतलब आई वॉज वेरी यंग, तो उन लोगों ने बोला था कि तुसी सानू 2 पिंड दूर सुट छड़िया. इट इज़ अ पंजाबी लाइन कि आपने हमको 2 गांव बाहर फेंक दिया. वन वॉज रिंग रोड एंड वन वॉज बाईपास. So that was the scene when bypass was there, but at that time hardly 2 lakh, 3 lakh acre was the rate. So the same story would be happening sooner or later. That story has already passed away when we talk about the corridors. But still, the mass is there. So there is always good buying for the mass also. And class, even if the market is slow down, you'll always get the luxury buyers. So both the areas are working well. No doubt the oversupply is there because the number of plot sizes is too much. If you talk about acres, the difference would not be much. But number of units, number of customers, number of plot holders is too much in the corridor area. So both the areas are good. This is how we can summarize comparatively both एक the छोटी areas. सी लाइन ऐड करूंगा. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो करना चाहिए. बाईपास का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है आज की तारीख में माइनस है. बाईपास का जितना कॉन्जेशन आप देखेंगे, ट्रैफिक जैम देखेंगे, एक्सीडेंट्स देखेंगे, हाइप ऑफ रेट देखेंगे, तो वो ठीक है क्लासेस के लिए है, पर जो 80% मासेस है उसके लिए आउट ऑफ रीच हो गया है. वो प्लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जेशन, मल्टीप्लाइड बाय नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. यदि मैं सुपर कॉरिडोर की बात करूँगा, IT हब बन गया है, एजुकेशन हब बन गया है, इन्फोसिस आ गया है, नरसिम्हा सिम्बियोसिस, अभी IDA के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक स्टार्टअप पार्क आ रहा है, कन्वेंशन सेंटर आ रहा है. मेट्रो कनेक्टिविटी बाईपास से है, मेट्रो कनेक्टिविटी सुपर कॉरिडोर से है, एयरपोर्ट सुपर कॉरिडोर पे है,
तो जितना भी मुझे फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट लग रहा है वो सुपर कॉरिडोर इन उज्जैन रोड इसलिए लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है, आईडीए का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का, आज 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंदौर उज्जैन रोड पर है, बड़े स्कूल्स इंदौर उज्जैन रोड पर है, इंदौर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अरबिंदो इंदौर उज्जैन रोड पर है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स को यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुपर कॉरिडोर इंदौर उज्जैन रोड पे जितना डेवलपमेंट हो रहा है, भली सिंहस्थ आएगा चले जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो तो रहेगा। बाईपास में मुझे ऐसा लगता है ठीक है हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी बाईपास पे, लेकिन कंपेरेटिवली यदि हम दोनों को करें, जो केशव ने बहुत अच्छा, देवेश ने, क्लासेस और मासेस, वो डिफ्रेंशिएशन है। पर जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम देखें, प्राइवेट प्लेयर्स का हम देखें, तो वो मुझे इंदौर उज्जैन रोड और सुपर कॉरिडोर पे अच्छा दिख रहा है अभी। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जब इंफ्रा के बाद ही कैपिटल इन्फ्यूजन उसको फॉलो करता है हर बारी। आप किसी भी टाउन को देखिए, इंफ्रा पहले आए और बाद में इन्वेस्टमेंट आए तो वो सक्सेसफुल। अगर पहले कैपिटल आ जाए और इंफ्रा बाद में आए, वो कंजेशन टाउन है। तो इसी बात पे ना एक चीज़ मैं आप सबसे वन करके पूछना चाहूँगा, एंड व्हाट केशव वाज आल्सो राइटली हाईलाइटिंग, कि पुणे में फ्रॉम अ बैकयार्ड ऑफ बॉम्बे एंड अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ बॉम्बे एंड अ एजुकेशन टाउन, क्वांटम लीप 30 साल में लिया। सेम बैंगलोर एक रिटायरमेंट टाउन, एक चिलिंग टाउन से एक मेजर आईटी सिलिकॉन वैली हब फॉर इंडिया बना। सिमिलरली हैदराबाद है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। और इंदौर, आप सही कह रहे हैं कि एबी बाईपास 20-25 साल पहले कंसीव हुआ, वहाँ बनना शुरू हुआ इंफ्रा। मेट्रो इतने टाइम पहले अनाउंस हुई, आज जाके ऑपरेशनल है। राइडरशिप ऑब्वियसली बढ़ती रहेगी एज एंड व्हेन कनेक्टिविटी बढ़ती रहेगी। तो ऐसा आगे आने वाले 5 से 10 साल में इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी का टैग तो लेता है, जहाँ पे इंदौर को लोग जानते हैं एज क्लीनेस्ट सिटी। बट वो क्लीनेस्ट सिटी नाउ टू टर्न इनटू अ बिग जायंट लाइक अ हैदराबाद और अ पुणे, वो क्या मिसिंग एलिमेंट है? अगर 1 बाय 1 आप बता पाएं कि अगले 10 साल में क्या वो 1 या 2 चीज़ें हैं आप सबके हिसाब से 1 बाय 1। तो अमित जी आपसे स्टार्ट करता हूँ, केशव पे एंड करूँगा एंड में, सबसे छोटा केशव है इसलिए। हम लोग जब बॉम्बे में बात करते हैं तो हम लोग इंदौर में बात करते हैं। इंदौर की बात होती है एज अ क्लीन सिटी, एज अ लिवेबल सिटी, एज एन ईजी प्लेस टू लिव इन, इस तरह से बात होती है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू द कंजेशन इन बॉम्बे एंड द ट्रैफिक इन बॉम्बे। सो इंदौर का परसेप्शन अभी वहीं तक है। अगर अपने को एक बड़ा लीप लेना है तो एक परसेप्शन में भी बड़ा लीप लेना है, एंड वेयर वी एक्चुअली इंफ्रा बनने के पहले, जब इंफ्रा बन रहा है तब वो इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पे पीपल स्टार्ट सीइंग इट डिफरेंटली। जैसे अभी देख रहे हैं उससे डिफरेंटली देखना स्टार्ट करें। तो मुझे लगता है कि रियलिटी एक तरफ एक बड़ा गेम चेंजर होगा कि आपका ब्रांड कैसे दिखता है। इंदौर भी एक ब्रांड है, एज अ ब्रांड आप कहाँ हो, जस्ट एक क्लीन सिटी हो या कुछ ज़्यादा हो, वो परसेप्शन बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। वो मैं भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट वी हैव इन इंदौर। आज अगर मेट्रो है, 4 स्टेशन 5 स्टेशन ऑपरेशनल है, वो आगे लोगों को पता हो क्या आगे फेजेस हैं। कुछ चीज़ें जब तक दिखेगी नहीं बिकेगी नहीं। गजेंद्र जी आपके हिसाब से 2 या 3 थिंग्स जो आपको लगती है नेक्स्ट 10 ईयर्स। पंकज जी, मैं अपनी बात रखूं उसके पहले अभी मैं जो एक डिबेट चालू हो गई थी यहाँ पर, बाईपास वर्सेस सुपर कॉरिडोर और उज्जैन रोड, तो मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोग हाथ उठाएं जिनको कि बाईपास बहुत अच्छा लगता है, जानना चाह रहे हैं, और वे साथी हाथ उठाएं जिनको लगता है कॉरिडोर और उज्जैन रोड का फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्या बात है। तो देखिए 50-50 है, और यही बात से मैं आगे बढ़ता हूँ कि पूरा इंदौर हम देखें ना तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है। एंड जहाँ तक क्लीनेस्ट सिटी का सवाल है, बहुत सारे क्लाइंट्स हमने ऐसे सर्व किए हैं
विच आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अभी गुड़गांव से हमारे साथ कुछ मित्र थे, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इंदौर में। सीइंग दिस दैट जो एयर पॉल्यूशन है और जो हालात हैं उन सिटीज़ में, उस हिसाब से उनको इंदौर बहुत अच्छा लगता है। परंतु वो सिर्फ एक अकेला कारण नहीं हो सकता कि हम समझें कि इंदौर बहुत अच्छे से राइज एंड शाइन करेगा। फॉर दैट one very important thing is connectivity. Again we have a plus point that we are in the center of the India. But यहाँ से किस तरह के ऐसे connectivities हों जो कि हर तरफ चारों तरफ पहुँच पाएँ, हम किस तरह से हमारी जो इंटरनल कनेक्टिविटी है सिटी के अंदर की हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मेट्रोज अभी आ रही हैं, तो सड़कें जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं। परंतु ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ हमें काम करना पड़ेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, तो एक ऐसा शहर जहाँ पे कि IIM, IIT और नई यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो नरसिंह मोहन हो, सिम्बॉयसिस हो, सभी यहाँ पर हैं। परंतु कहीं ना कहीं ग्रोथ रडार में वो सारे इंग्रेडिएंट्स अभी भी इंदौर में उस शाइन के हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से पूना, बेंगलोर या हम दूसरी सिटीज़ की बात करते हैं। तो मैं सुबह का अगर सेशन, अभी दिन का सेशन अगर याद करूं, तो वहाँ पर हमारे संदीप जी ने बोला था कि जो ईज़ ऑफ बिजनेस को फास्ट करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बनर्जी साहब ने कहा कि जो बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन पा रही हैं, जो TDR के इश्यूज़ हैं, इनको अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर से प्रॉपर एड्रेस किया जाएगा और बिल्डर्स को फिर उस हिसाब से हैंड्स मिलेंगे, जिससे उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जो कि हमारी MNCs को और हमारे दूसरे लोगों को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करेगा, तो शायद इंदौर और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्योंकि बाकी सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इंदौर में अवेलेबल हैं। ज़रूरत है गवर्नमेंट की सपोर्ट की, सिस्टम को फास्ट करने की और एडाप्टेबिलिटी की। बिल्कुल, मैं आपकी बात में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो एजुकेटेड यूथ अगर इंदौर रहना चाहे और यहाँ से माइग्रेट ना करे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो पाएँ, अगर आउटवर्ड माइग्रेशन ना हो तो शहर बहुत बहुत तरक्की और बहुत ग्रो कर सकता है। और वही आप ट्रिकल डाउन इकोनॉमी है, आपका कमर्शियल स्पेस बढ़ा, आपका रेजिडेंशियल बढ़ा, आपका हॉस्पिटैलिटी बढ़ा, स्कूल बढ़ा, हेल्थ केयर बढ़ा, सारी चीज़ें ट्रिकल डाउन इकोनॉमी है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग होती है, कोई रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग होती है, और एक सिटी की ब्रांडिंग होती है। उसमें क्या फ़र्क है? आप जब प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने ब्रांडिंग प्लान की और ब्रांडिंग किया। एक सिटी का ब्रांडिंग में क्या होता है कि इंफ्रा बनता है, उससे ब्रांडिंग होती है, लेकिन ब्रांडिंग बनती है उससे भी इंफ्रा बनता है। सो ब्रांडिंग से इंफ्रा आएगा, ये चीज़ रिवर्स में काम करती है एक सिटी की ब्रांडिंग में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिटी ब्रांडिंग एंड अ प्रोजेक्ट ब्रांडिंग। सो मुझे लगता है कि अगर परसेप्शन पे काम करेंगे तो इंफ्रा भी इसको काफ़ी हद तक फॉलो करेगा। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। विजय जी, आप बताइए। देखिए, मैं तो रियल इस्टेट और इंदौर दोनों को लेके सुपर पॉजिटिव हूँ, ज़्यादा ही पॉजिटिव बोलूँगा मैं तो। अभी आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गजेंद्र भाई का विजन है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम देख सकते हैं, 17 ब्रिजेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाईपास पे 3 लेयर, फर्स्ट MP का 3 लेयर ब्रिज आ रहा है, लवकुश पे 2 लेयर ब्रिज आ रहा है। उसके अलावा गरुड़ हाईवे जो अपन उज्जैन से जाते हैं, जो DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है। नागपुर हाईवे से हम जा रहे हैं, हैदराबाद कनेक्ट हो रहे हैं। खंडवा से हम जा रहे हैं, सॉरी हाँ उधर नागपुर से कनेक्ट हो रहे हैं। खंडवा से जा रहे हैं, हैदराबाद कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पीथमपुर को कनेक्ट कर रहे हैं हम, जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है। तो ओवरऑल अर्बनाइजेशन की बात करें तो पूरे MP का सबसे ज़्यादा GST कौन देता है? कौन सा शहर है? इंदौर। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पेयर कहाँ है? इंदौर। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ है? पीथमपुर, बेटमा एंड न्यू अपकमिंग एरियाज, वो इंदौर में है। सबसे ज़्यादा फ्लाइट कनेक्टिविटी कहाँ है? इंदौर में। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो अनदर 2 to 3 ईयर्स में बनेगा, ठीक है स्लो बन रहा है, एग्री गवर्नमेंट इश्यूज रहते हैं, स्लो बन रहा है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि बन रहा है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो बन रहा है MP का, इंदौर में बन रहा है। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी, अर्बनाइजेशन और बाहर की सिटीज़ से भी जो लोग आ रहे हैं, जो पीसफुल लिविंग चाहते हैं या रिटायरमेंट लिविंग चाहते हैं, वो इंदौर में चाहते हैं। सबसे बड़े 2 ज्योतिर्लिंग
रिलीजियस प्लेस की मैं बात करूं तो ओंकारेश्वर और उज्जैन वो किसके पास में है? इंदौर के पास में। 2 साल बाद जो सबसे बड़ा भी सिंहस्थ लगने वाला है वो कहाँ आने वाला है? इंदौर के पास आने वाला है। तो मुझे ये लग रहा है कि इंदौर को अर्बनाइजेशन से कनेक्ट करें या मेट्रोपोलियन रीजन जो बनने वाला है वो इंदौर बनने वाला है अनदर 2 to 3 ईयर्स में। अभी अपन बहुत इजी कनेक्टिविटी बन जाएंगे, बहुत इजी परमिशंस मिलने लग जाएगी जब आसपास के मेट्रोपोलियन आ जाएंगे, जब हमारा मास्टर प्लान आ जाएगा। स्लो हो रहा है, आई एग्री, स्लो हो रहा है। रियल इस्टेट ही स्लो के लिए, जो फास्ट करना चाहते हैं उनको तो सोना चांदी और शेयर मार्केट में जाना चाहिए, लेकिन यदि स्टेडी ग्रोथ चाहिए, सट्टा नहीं चाहिए। आज इंटरनेशनल मार्केट से शेयर मार्केट कनेक्टेड है, म्यूचुअल फंड कनेक्टेड है, सोना चांदी कनेक्टेड है, रियल इस्टेट कनेक्टेड नहीं है। रियल इस्टेट इज स्लो स्टेडी, और जिनको बड़ी अमाउंट में ग्रोथ चाहिए दैट इज ओनली रियल इस्टेट इन ओनली इंदौर। तो रिलीजियस बात करें तो इंदौर है, इंडस्ट्रियल बात करें तो इंदौर है, आईटी हब बात करें तो इंदौर है, 5 में से एजुकेशन की बात करें तो इंदौर है। आसपास के एमपी को किसी को भी यदि इलाज कराना है तो उसे इंदौर आना पड़ेगा। रिलीजियस करना है आउटसाइड पूरे वर्ल्ड से आना, इंदौर आना है। तो मुझे तो लग रहा है कि पूरे इंडिया का भी सेंटर है इंदौर, एमपी का भी सेंटर है इंदौर। तो जितने ज़्यादा ग्रोथ अभी मुझे अनदर 5 to 10 ईयर्स में इंदौर में दिख रही है, आसपास के सब अभी जितने भी छोटे सैटेलाइट टाउन्स बन जाएंगे, धार, पीथमपुर, रतलाम, महू, उज्जैन, ये सब मिलके भी ग्रोथ इंजन कहाँ बनने वाला है? हेड ऑफिस इंदौर बनने वाला है। तो मुझे लग रहा है इंदौर में दाव लगाइए, इंदौर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंदौर को पॉजिटिव लेके चलिए, इंदौर का विजन लेके चलिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन हो। 5 में से 4 वर्टिकल अभी ताज के इंदौर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हयात क्यों इंदौर आ रहा है? 7 to 8 5 स्टार अनदर 5 ईयर्स में इंदौर प्लान कर लिए। क्यों कर लिए? तो हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, आईटी, इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, हर जगह पे सिर्फ मुझे तो लग रहा है इंदौर के अलावा कोई सिटी है ही नहीं अभी। सर मेरे को लग रहा है इंदौर की ब्रांडिंग के लिए विजय जी को लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ अमित जी, इंदौर की ब्रांडिंग के लिए ये बेस्ट है। इनका पिक्चर इंदौर के ब्रांडिंग में होना चाहिए। को माइक मिल जाए तो ब्रांडिंग हो ही जाएगी। So, दिवेश जी आप प्लीज। मैं वही सोच रहा हूँ कि विजय भाई ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो व्हाट टू ऐड, बट जस्ट अभी लास्ट वीक ही मतलब व्हेन वी से इंदौर, तो एक्चुअली इंदौर हम लोग माने ना माने इट इज़ स्टिल वेरी अफोर्डेबली एंड वेरी प्रिसाइजली प्राइज्ड। आज भी हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है बढ़ने का, और बहुत सारे लोकेशंस ऐसी है रेसिडेंशियल्स में, कमर्शियल्स में, जो कि जेन्युइनली प्राइज्ड है व्हेन वी कंपेयर इट फ्रॉम अदर सिटीज़। और जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि वाई इंदौर, तो बहुत बड़ा रीज़न है कि आज भी हमारे यहाँ रेंटल्स रीजनेबल हैं। जो बाहर का आदमी इंदौर आता है, और जॉब्स में जैसे आप देखेंगे कि बॉम्बे में अगर कोई ऑन एन एवरेज किसी भी आईटी कंपनी में कोई पर्सन 1 लाख रुपए कमाता है, और अगर वही 1 लाख के बदले इंदौर में उसको 60,000 भी बचता है, तो उसकी सेविंग इंदौर में ज़्यादा होती है। उसके रेंटल्स कम है, उसके डेली एक्सपेंसेस कम है, ओवरऑल खर्चे, आप ट्रांसपोर्टेशन फास्ट है, आप घर से ऑफिस जल्दी पहुंच सकते हो, मतलब बहुत सारी रूटीन चीज़ें जो हैं दैट इज़ वेरी रीजनेबली प्राइज्ड इन इंदौर। हम जो रजिस्ट्रीज कराते हैं वो नॉर्मली, जो मैं भी पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से, कि 20 से 30% एड्रेसेस जो बायर्स के हैं दैट इज़ आउटसाइड ऑफ इंदौर। तो दैट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स, और ये सबके साथ हो रहा होगा, तो दैट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि इंदौर के बाहर का और कुछ एमपी के बाहर का भी बहुत बड़ा फंड, बहुत सारा इंटरेस्ट लोगों का इंदौर में आ रहा है, और इंदौर के पास अभी बहुत स्कोप है बढ़ने का। गुड़गांव में अभी सम पीपल वुड बी नोइंग इट, एक बहुत बड़े बिल्डर हैं ओबरॉय रियल्टीज बॉम्बे के, उन्होंने गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा 360 डिग्री नॉर्थ। एवरी फ्लैट की कॉस्टिंग वॉज बियॉन्ड 20 करोड़। आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट फिगर्स, पर 20 करोड़ नहीं, पर फ्लैट की ओवरऑल जो उनकी बुकिंग हुई थी 8,000 करोड़, राइट। 8,000 करोड़ की बुकिंग ओबरॉय रियल्टी ने गुड़गांव में इन लेस देन 4 मिनट्स करी है। कैन यू बिलीव इट? अभी आई वॉज इन पुणे फॉर हमारी जो एसोसिएशन है उसकी एक जनरल बोर्ड मीटिंग थी, वहाँ पे हमारे एक रियल्टर हैं जो गुड़गांव से काम करते हैं, तरुण भाटिया जी। ही वॉज टेलिंग मी कि देवेश भाई मेरे पास 5 चेक्स हाथ में रह गए, मेरे पास 5 चेक्स की मेरी इन्वेंट्री उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, उसको मैंने वेट लिस्ट में डाला हुआ है। सी द टाइप, हम कह रहे हैं कि बाजार रुका हुआ है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो भी तो इंडिया ही है, वो भी तो हम ही में से कुछ लोग हैं। तो हमारे पास अभी आज हम 2 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट को लग्जरी बोलते हैं, 5 करोड़ को हम लोग सुपर लग्जरी बोलते हैं या सुपर प्रीमियम बोल के सेल करते हैं।
हालांकि पंकज जी आई जस्ट अपडेट यू कि अब इंदौर में बाईपास पे भी बहुत ही अच्छा एक अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी 9 डिजिट वैल्यू रहेगी. तो वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड वेरी सून इंदौर विल ऑल्सो इज रेजिंग इट्स बार्स टू द टॉप लेवल व्हाट एक्चुअली पीपल कैन रियली अफोर्ड. और वो जो उनके जो फ्लैट्स का सेल है वो सिंपल सेल है कि हम जो बंगलों में रहते हैं उन लोगों को वो अपार्टमेंट सेल करना चाह रहे हैं. क्योंकि फ्लैट्स का तो एक सेगमेंट है, लग्जरी में जाएंगे 3 करोड़ से 5 करोड़. तो व्हाट एक्चुअली इंदौर इज टर्निंग नाउ इज वी आर गोइंग फॉर द लग्जरीज. 2% हमेशा कम होगा पर वो माइंडसेट आ रहा है लोगों का. एंड हमारे पास आज 20 करोड़ के फ्लैट्स के बायर्स बनेंगे. तो वी हैव दैट स्कोप. वे वुड दोज पीपल को जो लोग एक्सट्रीम पे जा चुके हैं. तो सक्सेस रेशियो या कहें कि एक प्राइस हाइक या एप्रिसिएशन या तेजी वो इंदौर जैसे सिटी में मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगती है. बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है. केशव जी आप बताइए, नेक्स्ट 10 इयर्स. नेक्स्ट 10 इयर्स तो कम है मिलने, मेरे को तो 50-60 साल अब इस शहर में जीना है. सो माई थिंकिंग इज़ कि आज जैसे सबने कहा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कॉमन उठाया कि क्लीन सिटी बोलते हैं इंदौर को, पीसफुल सिटी बोलते हैं. एंड हमारे पास भी बहुत ग्राहक आते हैं बाहर के शहरों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं हु से कि यार मुझे शायद से 50 के बाद जब मैं रिलैक्स हो जाऊँ, रिटायर हो जाऊँ, मुझे यहाँ पे रहना है. आई लव दैट पार्ट कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बट आई हैव अ स्मॉल इशू विद दैट ऑल्सो. आज जब मैं एक शहर को देखता हूँ, मेरे अपने शहर को देख रहा हूँ ग्रो होते हुए, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे आदमी एज ए यंगस्टर 25 साल की एज में आए, जहाँ पे वो अगले 50 साल कमाएगा. जब वो मेरी सिटी में कमा रहा है तो वो मेरी सिटी की जीडीपी इनडायरेक्टली ग्रो कर रहा है. तो मेरा माइंडसेट एज अ थर्ड जनरेशन हमेशा ये रहता है कि आज मेरे एज वाले, मैं अपनी एज वालों से बात करता हूँ तो इंदौर आने में क्या दिक्कत है, क्या इशू है. सो दैट इज़ द माइंडसेट आई वांट टू चेंज कि यार आप 50 में नहीं, आप 25 साल की उम्र में इंदौर आओ, अगले 50 साल इंदौर में जियो, ताकि अगले 50 साल की इकॉनमी इंदौर की बढ़े. इट्स नॉट अबाउट राइटिंग द 10-year ग्रोथ स्टोरी, इट्स राइटिंग द 100-year ग्रोथ स्टोरी. एंड वो जब भी होगा जब फर्स्ट डे हम यंग एज में लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. और उसके लिए शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ही ज़रूरी नहीं है. मैं पुणे गया हुआ हूँ, पुणे डजंट हैव अ वेरी ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स जस्ट द ब्रांडिंग दैट पुणे हैज़ क्रिएटेड, द ऑरा द पुणे हैज़ क्रिएटेड. मैं पुणे नहीं गया तो उसके पहले पुणे के बारे में सोचता था पुणे जैसी रोड तो कहीं नहीं होगी. जब मैं पुणे गया तो आई थॉट कि यार इंदौर आज पूरा अच्छा बना हुआ है, शायद इंदौर में बहुत अच्छी रोड है. इट्स जस्ट द ब्रांडिंग दैट वी रिक्वायर एंड वो होएगी. आज जो सब बोल रहे हैं लग्जरी प्रोजेक्ट्स, हाई राइजेस, मिड राइजेस, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े कमर्शियल स्पेसेस, ये सब जो अब बनेंगे 2-3 साल में ग्रेजुअली होगी, तो वो ब्रांडिंग ग्रेजुअली आएगी. एंड नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में हम वो ब्रांडिंग क्रिएट करेंगे. हाँ, एक 25 साल का बोलेगा कि हाँ मेरे पास पुणे भी ऑप्शन है, TCS, और पुणे इंदौर भी, TCS इंदौर भी है, तो शायद मैं TCS इंदौर चुनूँ, क्योंकि वो उसका डिसीजन चेंज करता है इंदौर की स्टोरी नेक्स्ट 50 ईयर्स जब वो इंदौर में जीता है. सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग आई विल पर्सनली वर्क ऑन. वेरी गुड पॉइंट. इस पे ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हम जब रियल एस्टेट को देखते हैं तो हम उसे एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल लेंस और एक इंडस्ट्रियल लेंस पे लाकर छोड़ देते हैं. 2-3 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा. अगर आपको होलिस्टिकली ग्रो करना है, सोशल इंफ्रा इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल इंफ्रा विच इज़ देयर. अब सोशल इंफ्रा में काफ़ी चीज़ें आती हैं. सोशल इंफ्रा में आपके क्वालिटी स्कूल्स आते हैं, आप किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं होलिस्टिकली, आप किस टाइप का हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं होलिस्टिकली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर कहते हैं कि ये रिटायरमेंट में मैं इंदौर आना चाहूँगा, तो क्या वो सीनियर लिविंग की कंडीशंस प्रेवलेंट हैं, वो एक सेगमेंट बहुत बड़ा ओपन अप हो जाता है सारे डेवलपर्स के लिए. क्योंकि आज हम लीनियरली सिर्फ रेजिडेंशियल को देखते हैं, कमर्शियल देखते हैं और ये बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. एक रिटेल, अच्छा रिटेल, मुझे याद है ट्रेजर मॉल 2005 में वन ऑफ द फर्स्ट मॉल टियर 2 में बना होगा. फर्स्ट मॉल टियर 2 में कहीं पूरे इंडिया में नहीं बना था. पहला मॉल गुड़गांव में 2003 में आया, 2005 में आया. तो इंदौर में वो चीज़ें हैं, विजन है कि वो कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं. ऑब्वियसली डिलेज हमेशा डिले हमेशा हो सकते हैं, रहते भी हैं. बट मोर और लेस अगर हम इन सेक्टर्स पे भी ध्यान दें, और एक चीज़ मैंने पिछली बारी भी क्रिटाई के इवेंट में मैंने बोली थी
कि आज जैसे कोई इंदौर या मध्य प्रदेश आता है तो टूरिज्म के लिए महाकाल इज अ वेरी बिग रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर कुछ ऐसा इंदौर में हम कर पाएं कि 1 या 2 रात और उस कस्टमर को रोक पाए किसी भी तरीके से, चाहे वो रिजुविनेशन के नाम पे आपके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, रीहैब के नाम पे एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, या कोई ऐसा थीम पार्क या वाटर पार्क हो जो इंडिया में नहीं है, कुछ भी एक चीज हो जहां 2 दिन एक्स्ट्रा आप किसी को रोक पाएं, आप इस इकोनॉमी को एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ते हुए देखेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, आज आप 7 होटल कह रहे हो, 70 भी कम पड़ेंगे। मैं पिछले हफ्ते थाईलैंड में था, बैंकॉक में कम से कम 50,000 रूम्स हैं। इतनी सी सिर्फ सिटी है वो, और रीजन है बिकॉज टूरिज्म, और कुछ है ही नहीं। तो एक ब्रांडिंग इंदौर को भी चाहिए, एजुकेशन टाउन भी बन सकता है, टूरिज्म टाउन भी बन सकता है, इंडस्ट्रियल टाउन भी बन सकता है, और वो ब्रांडिंग एक इंपॉर्टेंट रहेगी ग्रोथ के लिए फ्यूचर। इसी पे कोई क्लोजिंग कमेंट्स आप सबकी साइड से? बिल्कुल, ये तो सभी वर्ड यूज कर रहे हैं ब्रांडिंग। इस पैनल पे ब्रांडिंग एजेंसी एक ही है। नहीं, बट थैंक यू सो मच। आप देखिए, एनीवन आप कुछ कहना चाहेंगे? देवेश जी, विजय जी, गजेंद्र जी। मैं एक बहुत ही छोटी सी बात यहाँ पे रेस करना चाहूँगा कि हम जो वाई इंदौर की बात कर रहे थे, तो देखिए आज हम सब जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, रियलिटी प्लस, आज उसको SSA ने पावर अप करा और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो वाई रियलिटी प्लस चोज इंदौर? This itself tell us the story of Indore, because they could see the potential in Indore after being in Gurgaon or let's say in Mumbai or Hyderabad and Bangalore. So this is something great for Indore कि आज हम Tier 2 cities में, I think Realty Plus का अगर पहला कोई इवेंट Tier 2 में हो रहा है तो वो इंदौर में हो रहा है। तो आई विश कि हम इस सब पे एक प्रॉपर क्लैपिंग दें Realty Plus को और हमारे सिटी इंदौर को। मैं इसमें ऐड करते हुए यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम इंडस्ट्री एंगल से देखें तो रॉ मटेरियल रेडी है, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पिच पूरी तैयार है। तो सिर्फ ज़रूरत है कि अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो हमारे इंदौर के हों, अच्छे डेवलपर्स बाहर से ऑलरेडी आ रहे हैं, लोगों की ऑलरेडी नज़र है। तो 100% वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर इंदौर्स ग्रोथ। पर देखना ये है कि इसको हम किस तरह से और कितनी जल्दी, जो आपने पहले बोला कि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसा होते हुए देखें, ऐसी मेरी दिल की चाहत है। मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि आने वाले 10 साल में मैं जो ग्रोथ देख रहा हूँ, तो बेंगलोर वाले बोलेंगे यार जो भी ग्रोथ देखनी है अब इंदौर जैसी करनी है हमें। मैं वो विज़न लेके चलता हूँ कि बिल्डर्स को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिलीवरी टाइम पे देना चाहिए। अभी एज अ ड्रीम ग्रुप हमने सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक नया इनिशिएटिव किया है। हमने रिवर्स काउंटडाउन शुरू किया है कि इतने 180 डेज में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। दिस इज़ माय क्लोजिंग रेट, कि मुझे कॉन्फिडेंस है। रेरा तो ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है, मैं कह रहा हूँ हम अपने अंदर जाके यदि हमने इन्वेस्टर्स के रुपए लगाए हैं, एंड यूज़र्स के लोन के रुपए लगाए हैं, तो हमें अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी हमें रेरा को दे रहे हैं, हमारे जो चैनल पार्टनर्स और एंड यूज़र्स इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने भी कमिटेड रहे, टाइम के ऊपर डिलीवरी रहे, लीगल प्रोजेक्ट्स करे, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करे, जो भी अफोर्डेबिलिटी है वो भी लेके आए, AI का भी यूज़ करे। भी हम हमारी कंपनी में AI को लेके आ रहे हैं, AI एजेंट्स को लेके आ रहे हैं, जो हमारी AI हमारे लीड्स को भी फिल्टर करेगी और AI एजेंट्स हमारे ऑटो कॉलिंग करेंगे। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एज अ बिल्डर है सस्टेनेबिलिटी, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माल बेच दिया, रुपए कमा लिए, ठीक है, वो सब होता रहेगा। पर अभी आप देखिए पिछले 2 महीने में इंदौर में पानी की कितनी किल्लत गई है। वो हम भली नगर निगम को कोस ले, गवर्नमेंट को कोस ले, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमने अपनी जवाबदारी कितनी करी है? हम कॉलोनी के अंदर नर्मदा लेके आ रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी सब प्लॉट वालों को अलग से बोरिंग करना है। क्यों करना है? हमने रजिस्ट्री में लिखना शुरू कर दिया है कि आप बोरिंग नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट से या नर्मदा से या हमसे जो भी पानी की डिमांड है वो करें। दूसरा हो गया कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन को जितना भी कम कर सके, अभी हमने हमारी वर्टिकल में तो लेके आते हैं लोग, अभी हम हॉरिजॉन्टल कॉलोनी में सोलर पैनल्स को लेके आ रहे हैं, जिससे कि जितनी भी लाइट्स हैं उनकी, या जो गार्डन के अंदर पानी लग रहा है
जितनी भी लाइट जल रही है उसके लिए भी सोलर का जितना ज़्यादा यूज़ कर सके। तो मुझे लग रहा है वर्टिकल ग्रोथ के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ सभी दूर हमें अब सस्टेनेबिलिटी को भी यूज़ करना चाहिए। तो ब्रांडिंग ठीक है, लोग भी आ जाएंगे, लेकिन इतनी जो भीड़ आएगी, इतना जो कार्बन एमिशन होगा, उसकी प्लानिंग हमें अभी से लेके चलना चाहिए। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट। और चैनल पार्टनर्स के लिए हमेशा बोलता हूँ मैं कि किसी भी इन्वेस्टर से 3% मत कमाओ, 300% कमाने का टारगेट रखो, कि एक बार उनका पैसा गलत जगह मत फंसाओ। अच्छे ब्रांडेड इन्वेस्टर, ब्रांडेड बिल्डर्स के यहाँ आप रुपया लगाओ, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरी को लेके, जो टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं उनके यहाँ लगाओ। हर जगह पर आपके 3% के लिए लालच में मत उनका रुपया लगाओ। उनके 100 रुपये लग रहे हैं, आपको 3% मिल रहे हैं। लेकिन यदि आप अच्छी जगह लगाएंगे तो वो 3% जब आप 100 बार कमाएंगे तो आपको 300% कमाई मिलेगी। तो थोड़ा सा हित आप खुद के साथ इन्वेस्टर्स का भी देखिए कि उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट कराइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट विजय जी। एंड केशव, एनीथिंग? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम सब जहाँ बैठे जो रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी और इंदौर की फ्यूचर स्टोरी लिख रहे हैं, so I'll do my part. I'll always be committed towards writing Indore story first rather than writing Erin Group story. And मैं आपसे भी ये चाहूँगा, it is my assurance कि मैं हर दिन जब भी काम कर रहा हूँ, so it's about writing Indore story. And जब हम 30 साल बाद शायद यहाँ पे वापस बैठे रहे तो एक हम इंदौर को अलग ही नक्शे पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस। I'm going to be requesting the presence of Mr. Vipul Agrawal, who's the MD and CEO at SAA, to please kindly come up on stage and give all our speakers the token of appreciation. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज, टेबल्स के आगे, and can we have the token of appreciations please? थैंक यू सो मच। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज ज्वाइन कीजिए। प्लीज ज्वाइन देम फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ एज वेल, ऑल ऑफ यू। एंड थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, अगर थोड़ा ताली बजाएंगे तो आई थिंक इट एड्स टू द स्पाइस एंड फन, राइट? हाँ, यस, थैंक यू, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। इतने कम लिमिटेड टाइम में इतने वास्ट सब्जेक्ट्स को लेके बात करना एंड नॉलेज शेयर करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। सो बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल आवर स्पीकर्स, रियली बिग थैंक यू टू आवर मॉडरेटर एज वेल, थैंक यू।